16 lakh crore rupees of bank loans have been forgiven to 25. Do you realize how many industries you could set up with that? Act of production creates jobs. So India has to think about the act of production and organizing production. How to produce in a democratic environment. Every time you get a new technology, the argument is made that it's going to take jobs away. It does take jobs away, and some people, and then transfers them to other people. I'm not of the view that jobs will vanish, but different type of jobs will be created. The IT industry in India is going to have a real big, serious problem because of AI. I don't really think making scooters is going to have such a big problem. If you're positioned properly, it's an opportunity, and if you're positioned badly, you're in trouble. I think India has a skill respect problem, but I don't think there's any limit on the skills that are already available in India. The only way you're going to give our large mass of people jobs is if you start producing things, if you start manufacturing. I'm convinced India can produce with no problem. I'm convinced that India can take on China if you start aligning the country for production and if you start respecting skills. You take any district in India, you will find that there is a historical network that produces them. Open the banks to them, infuse technology, support them, and I guarantee you they will take on China. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हमेशा झूठ का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है? अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे हैं। वैसे तो राहुल गांधी पहले भी अमेरिका जाते ही रहे हैं, लेकिन पहले वो एक सांसद की हैसियत से जाते थे, तब शायद उनको इतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता था। लेकिन अब वो नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष होने के नाते कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के क्या मायने हैं दोस्तों। और राहुल गांधी ने टेक्सास में ऐसा क्या कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके पूरे प्रचार तंत्र को और गोदी मीडिया को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी जब टेक्सास में बोल रहे थे, राहुल गांधी ने यह कहा, आरएसएस की सोच भारत की बुनियादी सोच से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस बात से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मिर्ची लगनी तय है। दोस्तों, आइए अब ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने टेक्सास में दिए गए भाषण के दौरान मुख्य बातें क्या कही। Within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Congress. In our constitution, it's clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states, which means no state is superior to any other state. No religion is superior to any other religion. No language is superior to any other language. The RSS believes that India is one idea. We believe that India is a multiplicity of ideas. Everybody should be allowed to participate. Everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. The fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. What they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. When I describe Abhay Mudra, this is a symbol of fearlessness, and it is present in every single Indian religion. And when I was saying this, the BJP could not stand it. And we are going to make them understand. The other thing that happened that was very beautiful, in fact, I was amazed that it happened so quickly. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister. राहुल गांधी ने यह कहा कि आरएसएस ये बिलीव करता है कि भारत एक इकलौती विचारधारा है, जबकि राहुल गांधी का यह कहना है कि भारत में अनेकों विचारधाराओं का समावेश है। दोस्तों, यहाँ पर हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई हम 2024 के लोकसभा चुनावों में लड़ रहे थे, इस विचारधारा की लड़ाई। दोस्तों, लोग देख रहे थे, लोग समझ रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान पर किस तरह से हमला कर रही है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब से 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं डरता, ना आरएसएस से, ना पीएम मोदी से। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसपे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगनी तय थी। कल लास्ट में राहुल गांधी का एक प्रोग्राम और था जहां पे उनसे बेरोजगारी के या रोजगार के ऊपर प्रश्न किया गया, तो राहुल गांधी ने इस बात पे चाइना की तारीफ कर दी। उन्होंने ये कहा कि चाइना और वियतनाम में बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि चाइना और वियतनाम ने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि भारत के टैलेंट को मौका दिया जाए तो हम चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन भारत में जो टैलेंट है उसको मौका दिया जाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, इसमें राहुल गांधी ने क्या बुरा कह दिया? दोस्तों, जब राहुल गांधी चीन की बात करते हैं तो भाजपा का प्रचार तंत्र उन्हें देश विरोधी कहने लगता है, जबकि भाजपा के प्रचार तंत्र को यह नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार चीन की यात्रा करने जा चुके हैं। दोस्तों, यही नहीं, चीन की जनता और चीन के मीडिया तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले 14 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। तो क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए? जी नहीं। चीन जाना देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाने का कारण कतई नहीं हो सकता। ये एक अलग विषय है। राहुल गांधी ने चीन की जो तारीफ की है वो उनके मैन्युफैक्चरिंग और वहां पर चल रहे रोजगार के सिस्टम की तारीफ की है। दोस्तों, अब आइए आपको कुछ थोड़ा पीछे ले चलते हैं। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी चीन की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ताकि गुजरात में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हो और चाइना की मदद से हम अपने खिलाड़ियों की मदद कर सकें और ताकि हमारे गुजरात के खिलाड़ी देश भर में नाम कमा सके और मेडल ला सके। दोस्तों, आज चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेलकूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़। वैसे देखा गया तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की तारीफ करेंगे तब भाजपा का प्रचार तंत्र सो जाता है, और जब राहुल गांधी करेंगे तो उनको देश विरोधी, देशद्रोही इस तरीके की उपाधियां दे दी जाती हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा फैलाए गए झूठ को मत देखिए। आप उसके झूठ को देखते हैं और बहकते हैं। दोस्तों, कई बार साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा फैलाया गया झूठ हमेशा झूठ ही साबित हुआ है। याद कीजिए, आज से कुछ समय पहले गोदी मीडिया ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए कह रहे हैं, दखल देने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, जबकि ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हमें किसी बाहरी के दखल की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। Thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away.
So here's my question to Partha. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from out. इन तीन बातों से क्या साबित होता है? यही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, उसका केवल एक ही मकसद है कि राहुल गांधी को बदनाम करो। दोस्तों, राहुल गांधी 2023 से जब से भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर चुके हैं, तब से उन्होंने भारतवासियों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली है। लोग अब उनको सुनना चाहते हैं, लोग अब उनसे मिलना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र जी तोड़ कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया के प्रयास विफल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। दोस्तों, अमेरिका में हुए राहुल गांधी के जोरदार स्वागत और दिए गए भाषणों पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर ज्वाइन के बटन है, इनके द्वारा आप चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं दोस्तों। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।